بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ آج 8 ستمبر 2023 ہے، دوسرا جمعہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہے۔ چونکہ کل 7 ستمبر تھی تو 7 ستمبر ہماری تاریخ کا بہت اہم ترین دن ہے، اس حوالے سے کہ 7 ستمبر 1974 کو ہماری حکومت نے یہ بل پاس کیا اور اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ جو بندہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا قائل ہو، نئے نبی کا ماننے والا ہو، یا وہ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے آمنہ کے لال کے بعد، تو وہ بندہ باقاعدہ کافر ہے اور مرتد ہے۔ یہ 7 ستمبر 1974 کو یہ بل پاس ہوا، باقاعدہ ایکٹ بنا، لا بنا۔ تو چونکہ کل 7 ستمبر تھی تو آج 8 ستمبر ہے، تو میرے جی میں آیا ہم بھی اسی یاد کو تازہ کریں اور ساتھیوں کے دلوں میں ختم نبوت کے بارے میں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں کہ ختم نبوت کا معاملہ یہ بڑا ہی اہم ترین معاملہ ہے۔ تو ساتھی توجہ حاضر رکھیں، اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، ختم نبوت کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ بولیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک نبوت کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا فیصلہ ہے، صحابہ کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جیسا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، وہ آئیں گے تو وہ اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کریں گے اور اپنی کتاب انجیل شریف کی تبلیغ بھی نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ آ کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھیں گے، اسی قرآن و سنت کی تبلیغ کریں گے۔ تو یعنی وہ ایک اعتبار سے نبی تو ہیں، لیکن جب اس امت میں آئیں گے تو وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہی بات ہی عقل مند بندے کے لیے کافی ہے کہ جو اللہ کا سچا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اگر وہ آمنہ کے لال کی امت میں آ جائے تو وہ نبی نہیں رہتا، امتی بن جاتا ہے۔ جب سچا نبی کی نبوت باقی نہیں بچ سکتی تو جھوٹے نبیوں کی نبوت کیسے چل سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ سچا نبی آئے تو وہ نبی نہیں رہے گا، نبی والی شان ہوگی، اس کی مقام جو اس کے دور میں ہے وہ ہے، لیکن یہاں نبی کی حیثیت سے نہیں رہے گا بلکہ وہ امتی کی حیثیت سے رہے گا۔ جب سچا نبی اس امت میں آ کر نبی نہیں رہ سکتا، امتی بن جاتا ہے، تو دنیا کا اس امت کا کوئی کذاب اور جھوٹا بندہ وہ نبوت کا دعویٰ کر کے نبی کیسے بن سکتا ہے، نبی کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ یہ بات ہی بڑی سادہ سی ہے اور عقل مند لوگوں کے لیے بڑی سادہ سی سمجھنے والی بات ہے۔ اس کے بعد آگے ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، جیسا کہ بڑی اہم بات ہے،
जैसा कि रसूलुल्लाह को, आमिना के लाल को अल्लाह का रसूल मानना फर्ज है, इसी तरह जैसे उनको रसूल मानना फर्ज है, उनके बाद किसी को नबी या रसूल न मानना फर्ज है। अगर कोई बंदा आमिना के लाल को अल्लाह का रसूल माने और फिर नया रसूल भी तस्लीम कर ले, नबी को तस्लीम कर ले, तो ऐसा बंदा काफिर है, पक्की ठक्की बात है। इस बात पर याद रखिएगा, कुरान और सुन्नत के कई दलाइल मौजूद हैं। खत्मे नबुव्वत के मौजू पर तवज्जो फरमाएं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तवज्जो से, खत्मे नबुव्वत के मौजू पर मेरे अल्लाह ने पहरा दिया और अल्लाह ने अपने कुरान में 100 के करीब, 100 से कुछ जायद आयात खत्मे नबुव्वत के मुताल्लिक नाजिल फरमाई हैं। इतना अहम टॉपिक और मौजू है कि इस मौजू पर अल्लाह ने कुरान में 100 के करीब आयात नाजिल फरमाई हैं। और फिर आगे देखिए, आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 200 के करीब अहादीस मौजूद है जिनमें खत्म नबुव्वत का ऐलान किया गया है। अल्लाह का कुरान 100 आयात दलील के तौर पर पेश करता है और रसूलुल्लाह का फरमान 200 अहादीस। और नंबर 3, सहाबा का इजमा, यानी जमा हो जाना, इत्तेफाक कर लेना। सहाबा का इजमा भी इस बात पर शाहिद है और दलालत करता है कि खत्म नबूवत के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई लचक नहीं है। इस मामले में जरा बराबर भी रूह रियायत सहाबा ने नहीं बरती है और 1400 साल से उम्मत का यही तरीका आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस ममलिकत पाकिस्तान जो हमारा कंट्री और हमारा मुल्क है, इस मुल्क का एक्ट और कानून और लॉ वो भी यही कहता है कि जो बंदा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और बंदे को नबी तस्लीम करे या रसूल माने, या वो कोई बंदा नबुव्वत और रिसालत का दावा करे, तो वो हमारे कानून के तहत भी वो बंदा काफिर और मुर्तद है। ठीक हो गया जी। ये 3-4 बातें समझ आई आपको। कुरान की 100 आयात गवाह हैं खत्म नबुव्वत पर। हदीस में 200 हदीस इस बात पर शाहिद हैं। सहाबा का इजमा इस बात पर शाहिद है। और फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान का कानून, और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान का कानून नहीं, जब मुल्क पाकिस्तान में 7 सितंबर 1974 को जब ये कानून पास हुआ, उसके बाद दुनिया के बेशुमार जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं 55 के करीब, उन ममालिक में भी यही फैसला किया गया और यही कानून पास हुआ कि जो बंदा भी नबी की नबुव्वत के बाद नबुव्वत का दावा करे वो काफिर है, जो उसको फॉलो करे, जो उसको माने, वो भी काफिर है। गल समझ आ रही है? चलो बीच में एक बात और भी बता दूं आपको। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जिनका बड़ा मकाम है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द हैं, ताबिई हैं और बहुत बड़ा मकाम है उम्मत में इनका। और तकरीबन ये मैं इंशाल्लाह कच्ची पक्की रोटी की बात नहीं कर रहा, मैं इंशाल्लाह जो बात कर रहा हूँ तगड़ी बात कर रहा हूँ कि दुनिया में 80% लोग, पूरी दुनिया के 80% लोग इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की फिका को फॉलो करते हैं। समझ आई? 80%। बाकी जो लोग हैं उनमें जो है 3 इमाम हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुल्लाह। उन 3 हजरात को बाकी 20% लोग फॉलो करते हैं। और कुछ हजरात वो हैं जो किसी इमाम को भी फॉलो नहीं करते, उनको गैर मुकल्लिद कहा जाता है। लेकिन आज हमारा ये मौजू नहीं है, जो बात में करनी है वो ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने ये फतवा दिया है और इस पर उलमाए उम्मत ने इत्तेफाक किया है कि अगर कोई बंदा, तवज्जो से फरमाया, अगर कोई बंदा आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद इस उम्मत का कोई बंदा नबुव्वत का दावा
करे किसी मुसलमान के सामने और मुसलमान उससे सिर्फ इतना कहे, तू जो कहता है मैं नबी हूं तो कोई दलील पेश कर, दलील मांगने वाला बंदा जो ही दलील का मुतालबा करेगा फौरन काफिर हो जाएगा। कल समझ आइए, खत्म नबुव्वत का मामला कोई मामूली नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जरा बराबर भी लचक न कुरान में बर्दाश्त है, न हदीस में बर्दाश्त है, न सहाबा ने बर्दाश्त की है, न उलमाए उम्मत ने बर्दाश्त की है, न आज का कोई मुसलमान सही और अकीदा बंदा इसको बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है जी, और जरा इस पर चंद बातें अर्ज करता हूं। खत्म नबुव्वत का कुरान में 100 मरतबा इशारतन, किनायतन, दलालतन, यानी हर एतबार से इस बात का रद्द किया गया है कि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं है। क्यों नहीं है, सोचने की बात है। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, कौम शुएब आई, हजरत इब्राहीम आए, कौम लूत, हजरत लूत अलैहिस्सलाम आए, और मूसा अलैहिस्सलाम आए, हारून अलैहिस्सलाम आए। चलते चलते 1.25 लाख के करीब अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम आए, लेकिन हमारे नबी पर नबुव्वत खत्म हो गई। ये क्यों खत्म हो गई? पहले नबियों पर नबुव्वत मूसा पर खत्म क्यों नहीं हुई? नबुव्वत इब्राहीम पर खत्म क्यों नहीं हुई? नबुव्वत दीगर अंबिया पर और रसूलों पर खत्म क्यों ना हुई? हमारे नबी पर नबुव्वत क्यों खत्म हुई है? यहाँ आकर सलसला अल्लाह ने नबुव्वत का क्यों खत्म कर दिया, मुनक़ता कर दिया? ये 4 चीजें हैं कुरान और सुन्नत में। उन चीजों को देखो तो बात समझ आती है कि अल्लाह पाक ने नबुव्वत का सिलसिला क्यों खत्म कर दिया। ये मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं, एक बात और भी सुन लो। जो इस वक्त हमारे इस सदी 1.5 सदी के अंदर जो लोग नबुव्वत के दावेदार हैं, उनमें एक बड़ा नाम है मिर्जा गुलाम अहमद। एरिया का एक इलाका है कादियान, उसका रहने वाला कादियानी। उसने 1901 में नबुव्वत का दावा किया। उससे पहले उसने और कई दावे किए। कभी वो कहता था मैं वही मसीह मऊद यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो हदीसों में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मैं वही हूँ। कभी क्या कहता, कभी क्या कहता। आखिरकार उसने ये जालिमाना दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे ऊपर नबुव्वत की मोहर लगी हुई है। ठीक है जी, इसने ये दावा किया और दावे को लोगों तक पहुंचाने के लिए या इस दावे को लोगों में फैलाने के लिए ये कादियानी सबसे पहले जो बंदे पर सवाल करते हैं वो क्या होता है? वो कहते हैं देखो जी, नबुव्वत अल्लाह की रहमत होती है, नबुव्वत अल्लाह की रहमत होती है। तो ये कैसा सिस्टम है कि बंदा कहे रहमत अल्लाह की है तो वो खत्म हो गई। अब क्या हम रहमत के बगैर चल रहे हैं? ये पहला दाव वो लगाते हैं जो फरेब और धोखा देते हैं कि क्या रहमत में रुक गई, अब हम रहमत के बगैर जी रहे हैं। नहीं, रहमत तो ऐसी चीज है, इसका सिलसिला चलना चाहिए था। इसके कई जवाब हैं, सुनो उसका एक जवाब तो चलो ये मुख्तसर सुन लो बेटो, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मिर्जाइयो, जब तुम ये दावा करते हो कि रसूल तो नबूवत तो रहमत है, जो रहमत का सिलसिला मुनक़ते हो गया, तो अब हम कैसे रह रहे हैं? सुनो, नबूवत रहमत है और रहमत का सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ। क्यों? इसलिए अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा मोहम्मद सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत है। रहमत का सिलसिला चल रहा है। तेरी दाल ऐसे नहीं करेगी कि रहमत का सिलसिला मुनक़ते हो गया तो हम कैसे जी रहे। नहीं, रहमत का सिलसिला चल रहा है। लेकिन चलो जी, आप देखो जरा, नबूवत का सिलसिला अल्लाह ने रोका, खत्म किया। क्यों रोका? किस वजह से? रीजन, सबब क्या है? फरमाया देखो 4 चीजें हैं। नंबर 1 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नंबर 2 बैतुल्लाह, नंबर 3 कुरान, नंबर 4 उम्मत। ये उम्मत, ये 4 चीजें हैं। इन चारों चीजों के बारे में मेरा अल्लाह क्या कहता है, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो जी। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खातमुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन है। क्यों?
اس واسطے کہ میرا پیغمبر صرف مکہ کے لوگوں کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، بلکہ میں نے اپنے نبی کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ او لوگو، میرا پیغمبر قیامت کی صبح تک جو بندہ بھی پیدا ہوگا اس کے لیے بھی میرا پیغمبر نبی ہے۔ اگر میرا پیغمبر صرف مکے والوں کے لیے نبی ہوتا، مدینے والوں کے لیے نبی ہوتا، طائف والوں کے لیے نبی ہوتا، یا عرب والوں کے لیے نبی ہوتا، تو دوسرے علاقوں کو نبی کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ذریعے ہی لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، نبی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، نبی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ سنو، جس طرح سابقہ نبی، سابقہ رسول اپنے اپنے مخصوص علاقوں کے اندر نبی ہوتے تھے، یہ نوح پیغمبر کا علاقہ ہے، یہ صدوم قبیلہ کا حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ ہے، یہ عراق یا فلاں فلاں علاقہ حضرت ابراہیم کا علاقہ ہے، یہ فلاں علاقے کا، اس علاقے میں قوم سمود جس علاقے میں عرب میں آباد ہے، ادھر حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ آئے۔ یہ سارے نبیوں کے اپنے علاقے تھے اور ان کا مخصوص وقت تھا۔ لیکن سنو، میرا محمد ایسا نبی ہے، ان پر میں نے نبوت ختم کرنی تھی۔ جب نبوت کو ختم کرنا تھا تو ان کو ایسی ہستی بنانی تھی تاکہ قیامت تک آنے والا بندہ یہ نہ کہہ سکے یار میرے پاس تو نبوت والا پیغام پہنچا بھی نہیں ہے نا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرا پیغمبر قیامت تک سارے لوگوں کے لیے میرا نبی ہے۔ جب نبوت پیغمبر کی چلے قیامت تک تو نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پیغمبر قیامت تک نبی ہے۔ نمبر 2، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں، یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو میں نے ھدی للناس، ہدایت بنایا ہے سارے لوگوں کے لیے۔ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت، میرا محمد قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، یہ جو میرا بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کو میں نے کیسے بنایا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، میرا پیغمبر سن لے، ان لوگوں کو بتا دے یہ بیت اللہ قیامت تک لوگوں کا قبلہ ہے۔ بیت اللہ قیامت تک لوگوں کا قبلہ ہے، قرآن قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، محمد قیامت تک لوگوں کے لیے نبی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، او لوگوں سنو، جیسے میرا محمد قیامت تک نبی ہے، جیسے میرا قرآن قیامت تک ہدایت ہے، جیسے میرا بیت اللہ قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ ہے، اسی طرح سن لو یہ امت بھی قیامت تک رہے گی، کوئی امت نہیں آئے گی، اور کوئی امت نہیں آئے گی جب اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے، انا والساقین، ایسے 2 انگلیاں فرمائی میرے نبی نے، اور فرمایا انا والساق، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ان 2 انگلیوں کے بیچ میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا او لوگوں، میں اور قیامت یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میری امت کے بعد کوئی امت کوئی نہیں ہے، جو ہی میری امت ہوگی اسی امت میں اللہ پاک قیامت برپا کر دے گا۔ جب نئی امت کوئی نہیں تو نیا نبی کوئی نہیں، جب نبی کی نبوت قیامت تک ہے تو نئے نبی کی ضرورت کوئی نہیں۔
اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اچھا جی، قرآن میں اللہ نے 100 کے لگ بھگ آیات نازل فرمائی اور واضح کر دیا لوگوں میرا پیغمبر خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین، ختم کے 2 معنی آتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑی پیاری اس کی وضاحت کی ہے، فرمایا جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ دیوار یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور وہاں جا کر ختم ہو گئی، یا یوں سمجھو میں فلاں چیز چلتے چلتے وہاں جا کر ختم ہو گئی، ایک یہ معنی آتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے میں فلاں کام کر رہا تھا، کرتے 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 اب وہ کام میں نے ختم کر لیا۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے، انہوں نے فرمایا جیسے بچہ ہوتا ہے سکول کا کام، سکول ورک، ہوم ورک جو ہوتا ہے، وہ بچے سے شام کو پوچھو ہاں بیٹا کیا، وہ کہتا ہے ابو جی میں نے سارا کام ختم کر لیا ہے۔ ایک اس معنی میں ختم آتا ہے، ایک اس معنی میں ختم آتا ہے چیز چلتے چلتے ختم ہو گئی، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ فرمایا یہ ختم نبوت 2 طریقوں سے ہے، ایک یہ ہے کہ جو سلسلہ اللہ کے نبی آدم سے چلا تھا وہ محمد الرسول اللہ پر آ کر ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ سلسلہ آگے نہیں چل سکتا، ایک یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی انہوں نے فرمایا کہ لوگوں جس طرح ایک بندہ کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا یعنی مکمل کر لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے سنو میں نے جو نبوت کا سلسلہ چلایا تھا وہ سلسلہ چلاتے چلاتے اب میں نے محمد الرسول اللہ پر وہ سلسلہ آ کے مکمل کر لیا، ختم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں 100 آیات ہے۔ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک یہ آیت ہے اور بہت ساری آیاتیں ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ایک اور آیت سنیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اور آیت سنیے گا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک اور آیت سنیے گا، اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور بھی بے شمار 100 کے قریب آیات ہیں جس میں اللہ نے فرمایا میرا محمد آخری نبی ہے، میرا محمد خاتم المرسلین ہے، میرا محمد خاتم النبیین ہے۔ یہ تو اللہ نے ختم نبوت کے پہرے دیے ہیں قرآن کے اندر۔ اور ذرا حدیثوں میں آ کر دیکھیے 200 کے قریب حدیث ہے جہاں آمنہ کے لعل نے ختم نبوت پہ پہرے دیے ہیں۔ توجہ سے سنو، ٹائم بڑا شارٹ ہے، ٹوٹل 20-22 منٹ رہ گئے۔ ہم دعا کرو اللہ پاک مجھے ٹائم کے اندر بات سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔ تو آنکھو یار۔ اچھا جی توجہ، فرمایا لوگوں اللہ کے نبی کی 200 کے قریب احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی نے ختم نبوت پر پہرا دیا اور یہ بات منوائی صحابہ کو، یہ بات صحابہ کے دلوں میں راسخ کی۔ اور لوگوں سنو میں محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو لیکن اس کا ذرا بیک گراؤنڈ سنو۔ غزوہ تبوک یہ رسول اللہ کی زندگی کے آخری غزوات میں سے ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اور میرے صحابہ تیاری کرو، کفار کے ساتھ جا کے لڑنا ہے۔ تبوک کے موقع تبوک کی طرف چل پڑے ہیں، صحابہ کرام بھی چل پڑے ہیں۔ توجہ سے، صحابہ نے جب تیاری کی اللہ کے نبی نے بھی تیاری کی۔ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ ہوتی تھی جب آپ جاتے ایک نہ ایک بندے کو مصلی مسجد نبوی کا اس کے حوالے کر کے جاتے تھے، پھر اللہ کے نبی چلے جاتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ
अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अली तू मेरे मुसल्ला पर पीछे पहरेदार बन जा, मुसल्ला इमामत पर मैं तुम्हें अपना नायब बना के जा रहा हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म तस्लीम खम है, आप जिस तरह फरमाए मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी अल्लाह के दरबार में जिहाद करूँ, कुफार के साथ मुकाबला करूँ, उनको कत्ल करूँ और फिर आप खुद भी जामे शहादत नोश करूँ। सारी जिंदगी जो आप हमें शहादत की तरगीब देते रहे हैं, मेरा भी जी चाहता है मैं भी आ जाऊँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अली अंता मिन्नी बिमंजिलत हारून व मूसा औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ अलिया, सुन ले, तू मेरे लिए ऐसे है जैसे हजरत मूसा के लिए हजरत हारून थे। क्या मतलब? जब हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने बुलाया और मेरा पैगंबर कोहे तूर पे आ जा मैं तुम्हें अपनी वही और किताब अता करूं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम जब जाने लगे तो अपनी कौम पर एक निगरान मुकर्रर किया और वो निगरान अपना भाई हजरत हारून था। हजरत हारून को निगरान मुकर्रर करके हजरत मूसा अलैहि सलाम चले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली, जिस तरह मूसा ने हारून को अपने पीछे खलीफा और निगरान मुकर्रर किया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अपने पीछे तुम्हें खलीफा और निगरान मुकर्रर करके जा रहा हूं। तवज्जो से सुनो, बड़ी अहम बात है, बड़ी तवज्जो से। यूं ये फरमाया कि मैं तुम्हें अपने पीछे अपना नायब और खलीफा बना के जा रहा हूं। फौरन अल्लाह के नबी को ख्याल आया कि शायद कोई बंदा ये समझ ले कि आमना के लाल के बाद ये नबुव्वत का हकदार अली बन जाएगा, नबुव्वत का हकदार अली बन जाएगा। क्यों कि मूसा भी अल्लाह के नबी थे, हारून भी अल्लाह के नबी थे, तो मूसा ने हारून को अपना नायब बनाया था, अल्लाह के नबी को अपना नायब बनाया था। कोई लोग ये ना समझने लग जाए कि यार अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ग़ज़वा तबूक पे जा रहे हैं, पीछे हजरत अली को अपना नायब बना रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तू मेरे लिए हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। कोई ये ना समझे कि अल्लाह के नबी हजरत अली को अल्लाह का नबी कह के जा रहे हैं। उधर ही खड़े होके मेरे नबी ने फौरन बता दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। और सुनो लोगो, अली मेरा नायब होगा ग़ज़वा तबूक के मौके पर। ग़ज़वा तबूक पे जाते हुए ये मेरा पीछे खलीफा तो होगा, लेकिन सुनो मैं आखिरी नबी हाँ, मेरे बाद कैनू नबी नहीं समझना। अली मेरा नायब है, ए मतलब नहीं कि अली मेरा अल्लाह का नबी बन गया है। कितना पहरा दिया भाई, कहीं किसी को मौका ना लगे कि नबी के बाद अल्लाह के नबी ने खुद ही तो कहा है कि मूसा और हारून की तरह तू मेरे लिए है, तो ये ना हो कि इसको नबी कहने लग जाए। फौरन पहरा दे दिया। इसी तरह 200 अहादीस हैं। कितनियां? 200 अहादीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़ामु अन्नहु नबियुन ला नबी आबादी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और मेरी उम्मत वालों सुन लो, मैं मोहम्मद के बाद 30 बंदे ऐसे आएंगे। कितने? 30 बंदे, 30 बंदे ऐसे आएंगे। यज़ामु अन्नहुम नबियुन, वो ऐलान करेंगे, दावे करेंगे कि जी हम भी अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सलासून कज़्ज़ाबून, वो तीनों 30 के 30 परले दर्जे के कज़्ज़ाब होंगे। दूसरी हदीसों में फरमाया, दज्जालून कज़्ज़ाबून, परले दर्जे के दज्जाल होंगे और कज़्ज़ाब होंगे। उनके फरेब में ना आना, उनके दावों में ना आना, उनकी झूठी बातों में ना आना। सुन लो, दिल में ये बात बैठा लो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं
मोहम्मद ही अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कैसे पहरे दी अल्लाह के नबी ने, उम्मत को समझाते रहे। 200 अहादीस है, ज़हन में लेके जाओ। 100 कुरान की आयात है और 200 अहादीस है। इस बात पर शाहिद है कि कोई बंदा भी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी नहीं बन सकता। गल समझ आइए। ये क्यों मौजू शुरू किया है? 2 वजह हैं, 2 रीज़न। एक तो हमारा दूसरा जुमा रसूलुल्लाह के मुताल्लिक होता है। दूसरी वजह ये है कि कल 7 सितंबर थी। 7 सितंबर को 1974 में 7 सितंबर 1974 को हमारे मुल्क में ये आइन पास हुआ, ये आइन बना, बिल पास हुआ कि जी जो अल्लाह के नबी के बाद किसी को नबी माने या कोई नबुव्वत का दावा करे वो पक्का काफिर और मुर्तद है। अब समझ आइए। कुरान के 100 आयात भी यही ऐलान करती है, नबी की 200 हदीस भी यही ऐलान करती है और सहाबा का इजमा भी यही ऐलान करता है। हमारे मुल्क का आइन भी यही ऐलान करता है कि अल्लाह के नबी के बाद और कोई नबी। सच्चे दिल नाल गवाही दो। हो सकता है तुहाडी मेरी ये गवाही देवना अल्लाह नू पसंद आ जाए। इन्हां मेरे मुहम्मद के खत्मे नबुव्वत की गवाही दी है, इससे दी बरकत नाल हो सकता है तुहाडे मेरे अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देवे। तो खुले दिल नाल गवाही दो, आमिना के लाल के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर जी। अब देखो रसूलुल्लाह का दौर है सल्लल्लाहु, आखिरी अय्याम है और अब नबी ने कैसे उनकी सरकोबी की। तवज्जो से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में, आखिरी महीनों में, आखिरी अय्याम में एक बंदा असवद अनसी नाम का, उसने दावा नबूवत कर दिया। मुसलमा कज़्ज़ाब, इसने भी नबूवत का दावा कर दिया। 2 लोगों ने। और एक औरत सजाह बिन साबित नाम की औरत, उसने भी नबूवत का दावा कर दिया। तवज्जो करो जरा। असवद अनसी, इसने नबूवत का दावा किया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सहाबा कराम, अब देखो जरा, जो नबी के बाद नबूवत का दावा करे, नबी ने कैसी सरकोबी की है उसकी। फिर सहाबा की बातें बताता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चंद बंदों को तैयार फरमाया, इसको सबक सिखाओ। जो नबूवत का दावा कर रहा है इसे सबक सिखाओ। सहाबा कराम ने मशवरा किया, यार इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ऐसा तरीका किया जाए ताकि इसका नामो निशान भी मिट जाए, फितना खत्म हो जाए। खैर, उनमें ये सआदत, ये खुश नसीबी, ये अच्छा काम हजरत फिरोज देलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु को नसीब हुआ। रात के वक्त हजरत फिरोज देलवी ने असवद के घर में घुसकर उसकी गर्दन मरोड़ के उधर ही उसको जहन्नम वासिल कर दिया। उधर वो जहन्नम वासिल हुआ, उधर से काल आ गई अल्लाह की तरफ से आमना के लाल को, ओ मेरा पाक पैगंबर, तेरा दुश्मन, खत्मे नबूवत का दुश्मन आज जहन्नम वासिल हो गया, फला बंदे ने ऐसे कर दिया है। कुछ दिनों बाद वो कासिद लेकर पैगाम आ गया, या रसूल अल्लाह टारगेट अचीव हो गया, कम पूरा हो गया। दूसरा बंदा मुसलमा, मुसलमा ने नबुव्वत का दावा किया। तवज्जो करो जरा। नबुव्वत का दावा करने के बाद हर दौर में, तवज्जो से जरा, हर दौर में भोले भाले लोग जरूर होते हैं, होंगे ना, जिसकी सुनी उसी की तरफ मैदान पकड़ लिया।
मेरा बयान सुना, मुझसे मुतासिर हो गया, किसी बित्ती मौलवी का सुना उससे मुतासिर हो गया, किसी और तगड़े का बयान सुना उससे मुतासिर हो गया। एक जाते अपना घोड़ा नहीं बढ़ते होंगे, हमेशा यो जे लोग होंगे मुआशरे दे अंदर। मुसलमा के पीछे भी ऐसे बंदे और फॉलोअर चल पड़े, या उसने अपनी पॉपुलैरिटी और अपने आप को कामयाब होता हुआ देखा, उसने क्या किया, तवज्जो से एक खत लिखा। खत के अंदर अल्लाह खत लिखा आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खत लिखा, और खत का उसका मफहूम क्या है, क्या कहता है कि ये इला मुहम्मद रसूलुल्लाह मिन मुसलमतिन इला मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये मुसलमा की तरफ से खत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ खत है। उसके बाद उस खत के अंदर ये तहरीर है कि जनाब आप भी अल्लाह के रसूल हैं और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। ऐसा करते हैं अरब का आधा इलाका आप ले लें और आधा इलाका मुझे दे दें। आमिना के लाल ने जब ये खत सुना तो अपने कातिबीन को बुलाकर खत लिखवाया और उसकी तरफ लिख के क्या फरमाया, मिन मोहम्मद रसूलिल्लाह इला मुसलमत कज़्ज़ाब। एक खत है मोहम्मद करीम की तरफ से है जो अल्लाह का रसूल है, और जा किसकी तरफ जा रहा है, मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ। ऐसे जुमलों का इंतखाब किया ना आमिना के लाल ने, ताकि दोबारा किसी को सर उठाने की तौफीक ना हो कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल का खत है और मुसलमा कज़्ज़ाब परले दर्जे के झूठे और फरेबी की तरफ जा रहा है। उसके बाद फरमाया, सुन ले, अल्लाह से डर जा, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, कि मेरे बाद और कोई नबी नहीं हो सकता। लेकिन उस मुसलमा को और गुस्सा आ गया और जलाल चढ़ गया। तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं। अब झूठे नबियों का, झूठे मुद्दाईयान नबुव्वत का हाल देखो, उनका हाल क्या होता है। उनके अंदर हवस, माल का हवस, शावत रसानी, ख्वाहिशात का हवस, अपने आरज़ुएं और तमन्नाएं होती हैं। और जो अल्लाह का सच्चा नबी होता है उसके अंदर हमेशा लिल्लाहियत होती है, अल्लाह की रज़ा होती है, हमेशा वो अल्लाह के लिए सारे काम कराते हैं। चलो सच्चे नबी की एक बात सुन लो, छोटी सी बात, 10 मिनट है, तवज्जो से। सच्चे नबी की बात सुनो। ग़ज़वा उहद, तवज्जो सब की है, ग़ज़वा उहद, जब उन जालिमों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर पर हमले का मौका मिल गया, दुश्मनों को थोड़ी सी परेशानी आई, फिर अल्लाह ने वही फतह में तब्दील कर दी, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ। अब अल्लाह के नबी भी जख्मी है। सच्चा नबी कैसे होता है, फिर झूठे नबी की बात बताता हूँ। अल्लाह के नबी खैमे में है, साथ अबू बकर भी है, साथ उमर भी है। अबू सुफियान जो बाद में सहाबी बना फतह मक्का के मौका पर, उस वक्त मुसलमान कोई नहीं था। उसने पहाड़ी पे चढ़ के, तवज्जो से, उसने पहाड़ी पे चढ़ के नारा लगाया, ऐलान किया और कहता है, ऐना मोहम्मद, और किथे गया मोहम्मद। नारे मारा था जश्न खुशी के, उसमें भी हमें फतह हो गई। और क्या कहता है, ऐना मोहम्मद, किथे गया मोहम्मद। और जरा कितने साल तो सानू परेशान किया होया, ऐना मोहम्मद। हजरत उमर उठने लगे कि मैं इसे जवाब दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रिसले का या उमर, बैठ जा उमर, मैं तेनू अपनी जात वास्ते तलावन नहीं लेके आया। नबी अपनी जात के लिए कह रहे, मैं तुम, उसने मेरा नाम लिया है, मैं तुम्हें अपनी जात के लिए तो नहीं लेके आया। जब इधर से कोई जवाब ना गया तो अबू सुफियान ने दूसरा नारा मारा और कहता है, ऐना अबू बकर, अबू बकर कहाँ पे है। तो अल्लाह के नबी हजरत उमर फिर खड़े होने लगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर बैठ जा, मैं तेनू अबू बकर वास्ते तो नहीं लड़ा मन लेके आया। उमर फिर बैठ गया, फिर जवाब
कोई नहीं गया। तो अबू सुफियान ने तीसरा नारा मारा और ऐलान करके कहता आईना उमर। उमर कहता है या रसूल अल्लाह हुण तो मेरा अपना नाम पे लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर बैठ जा, तेनू मैं तेरे वास्ते तलवार नहीं लेके आया, तेनू और अबू बकर नू और मैं खुद और सहाबा कराम नो इन सबको मैं लेके आया हूँ, तो अल्लाह के लिए लेके आया। जब तीनों नारों का जवाब नहीं आया ना, तो अबू सुफियान ने फिर नारा मारा और कहता ओ लो हुबल। इसका माना है हुबल जिन, हुबल उनका वो था ना बुत, लात मनात उज्जा हुबल इसाफ नाइला वगैरह, हुबल उनका बुत था। उसने फिर नारा मारा, कहता ओ लो हुबल, हुबल जिंदाबाद जिसने आज हमें फतह दी है। आमना के लाल ने फरमाया उमर अब उठ, अब जवाब देने का टाइम आया है। मेरी बात, मेरे ऊपर बात की, मैं चुप हो गया, क्यों मेरी जात के लिए तुम नहीं आए थे। अबू बकर पर बात की, उमर पर बात की, मैंने कहा खामोश रहो। जब तौहीद पर चोट लगने लगी है और वो कहता है ओ लो हुबल कि हुबल ने हमें कामयाबी दी है, अब खड़ा हो जा और उसको नारे का जवाब दे और उसे कहे अल्लाह आला व अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। ये होंदा ही सच्चा नबी। तो जरा होंदा है झूठा नबी, ख्वाहिशात का पिट्ठू और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला, दुनियावी मकासद और मनफियत हासिल करने वाला। अल्लाह के नबी को खत लिखता है मुसलमा, कहता है जी आधा इलाका आप ले लो, आधा मुझे दे दो। ये समझा भाई ये इलाके जो थे मोहम्मद और रसूलुल्लाह दा जरा सिक्का चल रहे हैं ना नबूवत आला, ए दी बादशाहत कायम हो गई है तो उन बादशाहत वंडी सी। उसने ये नहीं पता कि नबूवत ये बादशाहत नहीं होती, नबूवत हिदायत होती है। और जो जो इसको लेता जाता है, जो जो इसके साथ टच होता जाता है, वो कामयाब तरीन इंसान बनता जाता है। बहरहाल क्या हुआ जी, उसे दौर दे अंदर बात सुनने वाली है, झूठे नबियों का हाल क्या होता है। सजाह बिनते साबित, इस औरत ने भी दावा नबूवत कर दिया। ऐसा कहा मैं ही नबी बनिया। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, तवज्जो से सुनो, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला नूही इलैहिम। हमने मर्दों के अलावा किसी को नबी बनाया ही कोई नहीं है। हवाला देख लो जरा, आयत नंबर 43 43, सूरत का नाम सूरत नहल, 14वां पारा है, सूरत नहल है और आयत नंबर 43 है, 43 है। मेरा अल्लाह क्या कहता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला, हमने मर्दों के अलावा किसी को नबी रसूल बनाया ही कोई नहीं है। ठीक है। ओ सजा बिनते हारिस कहती है मैं ही नबी बनिया। खैर बड़ा फसीह कलाम करती है, बड़ी अच्छी तकरीर करने वाली, बड़ी मुबल्लिगा, फसाहत और बलागत भी बड़ी है, हुस्न जमाल भी बड़ा है, बड़ी हसीना जमीला भी है और बड़ी फसीहा बलीगा भी है। दुआशियाँ रलवन तब मर्द पीछे न बजन तो क्या होवे है। बड़ा ग्रोह इकट्ठा कर लिया, बड़ा ग्रोह इकट्ठा कर लिया, बड़ा काफिला बना लिया। खैर अचानक उसे पता चला मुसलमा भी नबी है, मैं भी नबी हूँ, चलो हमारी मुलाकात होनी चाहिए कहीं पर, आपस में फामो तफीम। क्या जी मौका बनाया, 40 बड़े बड़े 40 गनमैन समझ लो या सिक्योरिटी वाले, उनके हिसार के अंदर मुसलमा पहुंच गया और सजा बिनते हारिस के पास वहां मुलाकात हुई। उसे बताया कि जनाब तू भी नबी है, मैं भी नबी हूँ, आधा इलाका इसमें तू अपने नबुव्वत का ऐलान कर और
وہ علاقہ میرا ہے, میں اس میں اعلان کرتا ہوں. بات طے ہو گئی. اور جھوٹے نبی کیسے ہوتے ہیں؟ خواہش پرست, نفسانی خواہشات کی دلدل میں دھنسے ہوئے. اس مسیلمہ کذاب نے, توجہ سے بات سنو, مسیلمہ کذاب نے سجا کو دیکھا تو کملا ہو گیا. اے تواقی نبی انہی ڈھک دیے تو ڈھک دی میرے نال ہے. اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی. کچھ دنوں بعد اس نے سجا کو دعوت دی, اب تو ہمارے پاس آ جا اور دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اس نے ایک بہترین باغیچے کے اندر خوبصورت خیمہ لگوایا. میں اپنے کول گلا نہیں پیا کرتا, پوچھ لینا علماء دے کول. اچھا, بہترین خیمہ نصب کرایا, خوشبوئیں ہر طرف مہک رہی ہے خوشبو, بڑا عالی شان لباس پایا. اور جنہیں کہیں گے کا رشتہ دیکھا مجھنا ہوئے تو وہ کیا کریں گے نگلے ہوتے ہیں نا سے, ہاں چنگے کپڑے پا با, وال چٹے تھے وہ تو اندر کلف ہی لا با, اگلے دیکھن میں جوان ہے ہوندہ ہے نا انہیں آج جا. اس نے بھی بڑھیا خوشبوئیں لگائیاں, بڑا فٹ فاٹ اپ ٹو ڈیٹ ہو کے بیٹھ گیا. وہ آئی سجاہ بنت ثابت, وہ نبیمنی, جھوٹی نبیمنی, وہ آئی آ کر خیمے کے قریب آئی. سارا پروٹوکول, ساری سیکورٹی باہر, اور یہ نبیمنی اکیلی اندر خیمے میں چلی گئی. وہاں بات بیٹھ کر گفتگو شنید ہوئی, بات چیت ہوئی. جو معاملہ بھی طے ہوا کرتے کرتے آخری معاملہ یہ طے ہوا, بغیر گواہوں کے, بغیر حق مار کے آپس میں نکاح کر لیا. نکاح کیتا, 3 راتاں گزاریاں, باہر آئی. توجہ کرو ذرا, جھوٹا نبی کیسے ہوتا ہے؟ 3 راتیں گزارنے کے بعد جب واپس آئی, باہر نکلی, نال لیا کس او اللہ تینو عقل دے وے, تو جو نبی منی ہے, گواہاں دے بغیر تے حق مار دے بغیر تے نکاح ہوندا ہی نہیں, تے کیویں کر لے. اس کو اوہو, ابھی میں آئی, دوبارہ خیمے میں آئی اور مسلمہ سے کہتی ہے حق مار کے را 10 لوگوں. جھوٹا نبی, یاد رکھو جتنا بندہ گناہوں میں پھنستا جاتا ہے نا, عقل اتنی ختم ہوتی جاتی ہے. جتنا بندہ دین کی طرف راغب ہو جائے نا, اللہ اس کو فہم اور عقل نصیب کر دیتا ہے. تو ایک بے وقوف پرلے درجے کے ظالم اور بدبخت, دونوں نبی اور نبیہ جھوٹے, ان کی عقل ختم. اب یہ دوبارہ گئی, کہتی ہے حق مار دے بارے لوگوں کے جواب دے. اس نے دسیا ہے, اس نے باہر آ کے اعلان کیا. توجہ کرو, اس جھوٹی نبیہ نے سجا بنت حارث, اس نے باہر آ کر اعلان کیا ہم نے جو حق مار مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ آج کے بعد فجر کی نماز اور عشاء کی نماز تمہارے اوپر معاف ہے. یہی ہمارا حق مار ہے, یہی ہمارا حق مار ہے جی. ٹھیک ہے, اے حق مار پہ طے ہوندا ہے. اے جھوٹے نبیاں دیاں علامتاں نے. خیر, آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور ہے, آخری 2-3 مہینے اللہ کی نبی کی زندگی کے باقی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا, ایک قافلہ بھیجا, اور مسیلمہ کذاب کا انتقام لینے کے لیے, اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ادھر وہ قافلہ گیا, اور پیچھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے. فوت ہو گئے اللہ کے پاک پیغمبر. وہ جو قافلہ تھا صحابہ کا, انہوں نے جا کر مسلمہ کو تہتے کیا اور ختم کیا اور اس کو مارا. اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو خوشخبری ملی وہ یہی تھی کہ جھوٹا مدعی نبوت ہلاک ہو گیا. توجہ سے بات سنو, ٹائم پورا ہو گیا ہے. توجہ سے, میں جو بات عرض کر رہا تھا, ختم نبوت کا موضوع کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کل 7 ستمبر تھی, آج 8 ستمبر ہے. 7 ستمبر 1974 کو ہمارے ملک کے آئین میں یہ بات فیصلہ ہوا اس بات کا, جو بندہ بھی نبوت کا اعلان کرے آمنہ کے لال کے بعد, وہ بندہ پکا کافر ہے, مرتد ہے. ایسے بندے کی سزا واجب القتل ہے. اور یہی وہ مرتد کیوں ہوا ہے؟
इसलिए कि ख़त्म नबुव्वत का इनकार किया। इसी ख़त्म नबुव्वत की पहरेदारी के लिए अल्लाह ने कुरान में 100 आयात नाजिल फरमाई है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने एक रिसाला लिखा है ख़त्म नबुव्वत का, उसमें तकरीबन 100 आयात उन्होंने तहरीर फरमाई है। वो जाके देखिएगा, 100 आयात लिखी अल्लाह ने वो उतारी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 200 के करीब हदीस है जिनमें वाज़े तौर पर यह बता दिया गया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी। सहाबा का इस बात पर इजमा है, सहाबा का इस बात पर इत्तिफाक है कि जो बंदा भी नबुव्वत का दावा करे आमना के लाल के बाद, वो बंदा वाजिबुल कत्ल है। ठीक है जी। खैर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में सबसे पहले जिस बात पर चढ़ाई की है और जिसके खिलाफ जिहाद किया है, वो ख़त्म नबुव्वत के मुताल्लिक यही मुसैलमा कज़्ज़ाब था। इसके बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफ़िला भेजा। और याद रखो आमना के लाल, तवज्जो से, ख़त्म नबुव्वत का मामला कितना अहम है। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला नबुव्वत के दौर में टोटल जो सहाबा शहीद हुए वो 259 सहाबा शहीद हुए हैं तकरीबन। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ख़त्म नबुव्वत के खिलाफ, ख़त्म नबुव्वत में डाका डालने वालों के खिलाफ जब पहला मार्का लड़ा, एक ही मार्के में 1200 सहाबा शहीद हुए। ये इस बात पर दलालत करता है कि सहाबा के नजदीक ख़त्म नबुव्वत का मामला बड़ा ही अहम था। 1200 सहाबा ने जान दे दी है, जिसमें से 700 कुराआ थे, 700 कुराआ सहाबा थे। और बाकी जो है वो सहाबा इकराम 500 के करीब, वो आम सहाबा कारी नहीं थे। ये इतनी बड़ी तादाद का कुर्बानी दे देना सिर्फ एक ही नुक्ते पर कि नबी के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। भाइयों, मैंने आपको मसला भी समझा दिया है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा भी सुना दिया है। कोई बंदा भी नबुव्वत का दावा करे, खुदारा उससे दलील कभी ना मांगना। क्यों? इसलिए कि अगर उससे दलील मांगी तो दलील मांगने वाला बंदा फौरन काफिर हो जाएगा। क्यों? हमेशा दलील उस बात की मांगी जाती है जिस बात में आपको शक पड़ जाए, लेकिन ख़त्म नबुव्वत के मामले में शक की गुंजाइश ही जब कोई नहीं है, फिर दलील मांगने की जरूरत ही कोई नहीं है। क्या समझ आइए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ये मामला इतना हसास है, इसमें सारे उलमा मुत्तफिक हो जाते हैं, चाहे देवबंदी है, हयाती ममाती है, इशाती है, अहल हदीस है, बरेलवी है, जो भी जितनी भी मसालिक हैं, सब के सब इस टॉपिक पर, इस मौजू पर इकट्ठे हो जाते हैं कि हम मोहम्मद के बाद किसी नबी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भी नहीं करेंगे ना? इंशाअल्लाह जिंदगी में ये तहिया करके रखो, जान चली जाएगी, चली जाए, चली जाती है तो चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। माल गुर्बत के धक्के खाने पड़ जाएंगे तो खा लेंगे, औलाद की कुर्बानी देनी पड़ी तो दे लेंगे, लेकिन ख़त्म नबुव्वत के मामले में जरा भी लचक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमाए।